8 से start. So we have taken a break of 10 minutes for replacement of the battery. The break started from time 10:43 and we are starting the session now. Okay, so as we were discussing about power of conscious and subconscious mind, right? I'll just give a quick recap of that. So when we talk about conscious brain and subconscious brain, तो हमारा जो brain है वो majorly 3 section के अंदर divided है, as we have discussed. Conscious brain, subconscious brain and unconscious brain. Unconscious brain का बहुत ज़्यादा impact हमारे personality development parameters पे नहीं होता, तो we would not be discussing on that. 2 section के ऊपर हम लोग आज discuss करेंगे, that is the conscious brain. Conscious brain is the alert brain. आप लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, right? तो ये सारी चीजें जो कर रहा है ये आपका alert brain कर रहा है. Alert brain, that means your conscious brain. And then we have the subconscious brain. Subconscious brain, that means ये मैंने जो भी चीजें आपको बोली हैं उसका जो भी आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, जो आपके एटीट्यूड को, जो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन. तो हमारा ब्रेन मेजरली इस 2 पैरामीटर पे वर्क करता है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, राइट? सो एज आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, right? 90% of the people today are living the same life as they were living, right, 3 years before winning the game. और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि the major reason behind that is the external component in their life changed for a temporary period of time, but the internal component was same. आज अगर मैं बोलूँ कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को डिज़ाइन करती हैं, राइट? तो आप यहाँ पर बोलेंगे टीचर्स, बुक्स, फैमिली, फ्रेंड्स, राइट? एक्सटर्नल जो भी हम कंटेंट ग्रास्प कर रहे हैं वो हमारी लाइफ के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, राइट? हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करने के लिए. आज जब हम इसकी बात करें तो इन दिस कौन बनेगा करोड़पति, जस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास पैसा आ गया, जिनको अभी लोग जानते नहीं थे ज़्यादा कुछ नहीं, तो एटलीस्ट उनके विलेज में कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ जी से मिलके आए, कम से कम उनके विलेज के अंदर उनकी पूछ परख होने लगी. एंड दिस इज हाउ फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज्ड. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या थी? व्हाई टुडे दे आर लिविंग द सेम लाइफ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, इंटरनल कॉम्पोनेंट वाज सेम. एक्सटर्नली चीज़ें बदल गई, पैसा नहीं था पैसा आ गया, फेम आ गई, आपको एक डिसेंट लाइफस्टाइल आप ने अरेंज कर ली with that money which you have won, but ultimately internal component जो थे that remained the same. And that is why इससे the one lesson which we can learn from this particular session is, rather than focusing on external component of life, try to focus on the internal attributes of your life. So this is what we have seen in this session of power of conscious and subconscious mind. Now further we would be focusing on the next section, right? That is okay, I'll quickly brush up as new students have joined, so I'll quickly brush up on the parameters which we have discussed, that is 3 brain working principle. I'll just tell you what all topics which we have covered till now. So we have started with the introduction and main mission and vision of conducting this seminar. As this is a new crowd, so I again want to tell that the main intention of achieving or delivering this session for 12-15 hours is not only to create a world record but to create a greater impact, right? So that is why we have planned this entire day, 14-15 hours of personality development and public speaking session, so that many students and many of you can join and avail benefit from this session. So we have initially started with multiple session introduction, right, where I have just mentioned the entire
flow of the topic, what all we would be covering throughout the day. And then we have started with people skill. People skill is basically evaluating people by their personality, evaluating people by their skill set, and allocating right task and appropriate task to them. And then we have discussed upon multiple other different stories which are there. So I would again like to give a brief about those stories which I have discussed and which has really created a great impact in my life. So the first story is the balloon story. This is one of my favorite story, right? There was a small child, right, जो अपने स्कूल के बाहर एक बलून वाले को ऑब्जर्व करता था। बलून वाला एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करता था टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, राइट? वो कुछ 5, 7, 8 बलून हवा में छोड़ता, राइट? उसको देख के बच्चे उसके आसपास आते एंड दे यूज टू बाय दैट और उसका बिजनेस चलता। There was a child वो 15-20 डेज से ऑब्जर्व कर रहा था, जो बहुत दूर एक गेट के पास में खड़े होकर बस इस बलून सेलर को ऑब्जर्व करता। बड़ी हिम्मत करके एक दिन वो उसके पास पहुंचा और ये जो बलून सेलर था, ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कलरफुल बलून्स को ऊपर छोड़ता और कुछ ब्लैक वाइट कलर के जो बलून्स हैं वो हवा में नहीं छोड़ता। तो उसने आके एक बार वो बलून सेलर से पूछा कि ये लाल बलून उड़ता है, ये नीला उड़ता है, क्या ये काला नहीं उड़ता? And the reply which that balloon seller gave was amazing. उसने बोला कि ना लाल बलून उड़ता है, ना नारंगी उड़ता है, जिसमें कुछ होता है वो उड़ता है। What a beautiful message which he gave. That means when you have potential in yourself, your caste, creed, color, country, nation, background, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही में अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, you need to build that extreme potential in your life in order to achieve something great. The second story is of Chanakya and Chanakya and Chandragupta Maurya. So over here आप में से कितनी बार आप लोगों ने लाइफ में ये चीज़ फील करी होगी कि बहुत बार बहुत सारी सक्सेस आपके पास से आते आते आपसे छूट गई, या बहुत सारे ऐसे लाइफ के सिनेरियोस थे wherein you felt that you were very close to achieving something and you lost it, right? If that is the case, I would again like to narrate this story where people have really achieved great by doing this. So ये स्टोरी है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, राइट? सो कौटिल्य वेंट टू धनानंद। धनानंद उस समय थे चक्रवर्ती सम्राट। जब हम बात करते हैं चक्रवर्ती सम्राट की, तो इनका मतलब क्या होता है? जब कोई एक गांव का राजा होता है, राइट, तो उसको बोला जाता है पंच। 5 गांव के राजा को बोला जाता है सरपंच। 5000 गांव के राजा को बोला जाता है राजा। 10,000 गांव के राजा को बोला जाता है सम्राट, और 1 लाख गांव के राजा को बोला जाता है चक्रवर्ती सम्राट। तो यहाँ पर बात हो रही है चक्रवर्ती सम्राट की। चक्रवर्ती सम्राट धनानंद जब चाणक्य उनके पास, कौटिल्य इनके पास आते हैं ये बोलते हुए कि विदेश से आक्रमण भारत पर हो रहे हैं और आपको कुछ एक्शन इसके ऊपर लेना होगा, तो पूरी सभा में बुरी तरीके से इनकी बेइज्जती करके इनको बाहर निकाला जाता है। और तब कौटिल्य ये संकल्प लेते हैं कि एक साधारण से इंसान को तेरी गद्दी पर बैठाऊंगा। That was the commitment which he did। और एक 14 साल के बच्चे को, राइट, जो एक छोटे से गांव में रहता था, उसको 20 साल तक प्रशिक्षण देकर चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। और अब वो समय था लगभग 17 साल बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की सेना दोनों आमने सामने युद्ध करने वाली थी। युद्ध के ठीक पहले कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य से बोलते हैं कि पूरे युद्ध में हर थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें पहाड़ी के ऊपर देखना है। पहाड़ी के ऊपर मैं 2 झंडे लेकर खड़ा हूं, एक है हरा झंडा और दूसरा है लाल झंडा। जब भी कोई संकेत ऐसा आए जहां पर मुझे कुछ खतरा लगेगा, मैं लाल झंडे का संकेत तुम्हें दिखाऊंगा। लाल झंडे का संकेत देखते ही अपने शस्त्रों को छोड़ के जंगल में अलग अलग दिशाओं के अंदर चले जाना। तो बोलता है कि महाराज ये प्रशिक्षण तो आपने मुझे नहीं दिया और ऐसी ट्रेनिंग तो आपने मुझे नहीं दी कि मैं अपने शस्त्रों को रखकर पीठ दिखाकर दुश्मन के सामने जंगल के अंदर भाग जाऊं। तो कौटिल्य उस समय बोलते हैं कि अभी वाद विवाद का समय नहीं है, केवल जितना बोला जा रहा है उतना करो। दोनों
के बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की सेना दोनों आपस के अंदर युद्ध लड़ती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बुरी तरीके से धनानंद की सेना को समाप्त करते हैं और इसी बीच वो देखते हैं कि धनानंद के जो दामाद हैं वो अपनी सेना लेकर, वो अपनी फौज लेकर 10,000 लोगों की फौज लेकर सामने से आ रहे हैं। ऊपर पहाड़ी से जैसे ही कौटिल्य वो देखते हैं तो लाल झंडे का संकेत देखते हैं। उसके बाद भी अपनी आखिरी क्षमता तक चंद्रगुप्त मौर्य लड़ने का प्रयास करते हैं, पर लाल झंडे का निरंतर संकेत देखने पर शस्त्रों को वहीं छोड़कर युद्ध में पीठ दिखाकर जंगल के अंदर अलग अलग दिशा के अंदर इनकी पूरी सेना भाग जाती है। 2 साल तक अपने गुरु को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते हैं और बार बार गुरु बस एक ही बात बोलते हैं, अभी और तैयारी करो, यू नीड मोर प्रैक्टिस। 2 साल तक अपने आप को और तैयार करने के बाद लगभग 19-20 वर्ष बीत चुके थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की सेना आमने सामने होती है। फिर कौटिल्य यही बोलते हैं कि मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, लाल झंडा और हरा झंडा लिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरी तरफ देखना, लाल झंडे का संकेत मिलने पर अलग अलग दिशा में चले जाना। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की सेना को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। धनानंद को भाल से पकड़कर मैदान के बीच में लाया जाता है। आखिरी भाला मारने से पहले वो अपने गुरु की तरफ बड़े गर्व से देखते हैं और जैसे ही उधर उनकी नजर जाती है उनके गुरु लाल झंडा लिए। अब वो सोचते हैं कि अब तो ये तो जीता हुआ युद्ध, ये भाला मारना है, ये चक्रवर्ती सम्राट को समाप्त करना है, आज शाम राज तिलक करोगे, मेरा लाल झंडा जीते हुए युद्ध में क्यों दिखा रहे हो? फिर भी कौटिल्य कुछ नहीं सुनते, लाल झंडे का संकेत जीते हुए युद्ध में भाला फेंक के चंद्रगुप्त मौर्य जंगल की ओर भाग जाता है। अब इसके बाद 3 साल तक ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का कोई संवाद नहीं हुआ और बस जब भी वो सामने टकराते तो कौटिल्य केवल चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही बात बोलते, अभी और तैयारी करो। 3 वर्ष बाद लगभग 23 वर्ष बीत चुके थे। फिर से ये युद्ध सामने हुआ जहां चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद की सेना आमने सामने थी। धनानंद भी अपनी पूरी अंतिम ताकत यहाँ पर इस युद्ध में लगा रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी पूरी अंतिम ताकत के साथ यहाँ पर थे। यह युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की सेना को फिर बुरी तरीके से हराते हैं। धनानंद को फिर पकड़कर मैदान में उसी जगह लाकर खड़ा करते हैं। भाला मारने से पहले वो सोचते हैं कि एक बार उनके महाराज की तरफ देखा जाए और इस बार जब चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ, इस बार जब धनानंद की तरफ नजर जाती है तो खुशी से हरे झंडे का संकेत दिया जाता है। और इतिहास बताता है कि इस भाले के अंदर इतनी तीव्रता थी, इतनी ताकत थी कि जब भाले को उठाकर मारा गया है तो सोने का कवच, जो कुछ आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट से कम नहीं होगा, ये भाला बिल्कुल शरीर को आर पार कर देता है। दिस वॉज द इंटेंसिटी ऑफ दैट अटैक। अंत में जब राज तिलक होता है तब ये प्रश्न फिर पूछा जाता है कि महाराज आप एक बात मुझे बताइए, मैं पहले युद्ध में लाल झंडे का संकेत आपने दिखाया, वो युद्ध में हार रहा था, उसमें समझ भी आता है। दूसरे युद्ध में मैं धनानंद को मारने वाला था, ये तो आप 3 साल पहले कर रहे होते, आपने जीते हुए युद्ध में मुझे क्यों रोका? तो जवाब देते हैं कि राजा बनना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है राजा बने रहना। टू बिकम अ किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन दैट पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। और इस कारण से हम कितनी बार बोलते हैं उसकी तो किस्मत थी इसलिए उसे ऐसा मिल गया। नेपोटिज्म की बात बड़ी चलती है। अरे नेपोटिज्म है भी और वो प्रोबेबली हर फील्ड के अंदर हो सकता है।